Hello students, today we are going to start new chapter number 3, company final accounts. In these chapters we will study the income statement, and we says that the profit and loss account or balance sheet, how to prepare the final account of companies. So simply we learn the balance sheet and profit and loss account. First we will discuss the balance sheet. We know very well, so that's mainly two sides of balance sheet. One is liability, capital liability side. It means then equity liability, and second is asset side. But here we are going to prepare the vertical form of balance sheet. So balance sheet is at here the name of the company and the date on which balance sheet is prepared. So particular not number rupees. We know very well. First, मैन हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट की मैन हेडिंग में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, there are two headings in liability. One is equity liability and second is assets. Now main heading of the equity and liability side, shareholders fund. Shareholders fund.
share capital, and second is reserve and surplus. Second heading is non-current liabilities. एंड नॉन करंट लायबिलिटीज के सब हेड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, and long term provisions. And third number, current liabilities. Short term borrowings, trade payables, other current liabilities, and D, short term provisions. Okay, now again we'll discuss. So there are in ये भी बैलेंस शीट अच्छे से प्रिपेयर करनी है, समझ लेना कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है. यू हैव टू लर्न और द रिमेंबर दिस बैलेंस शीट्स और द फॉर्मेट एंड put the value, and that's a very simple. Then weightage of these chapters or the sums in exam is 11 marks, and this is the highest weightage over the all chapters. So this one is the important. So see the equity and liability. In equity and liability, shareholders fund. In shareholders funds, share capital and reserve and surplus. Then second one is non-current liabilities. In non-current liabilities, long-term borrowings, long-term liabilities, it means other long-term liabilities, and next is the long-term provisions and current liability. तो ये तीनों तो मीन्स यहाँ पे सेम टू सेम आने वाला है, समझ लो अच्छे से. बट एक ऐड हो रहा है सिर्फ, वो है ट्रेड पेएबल्स. जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस तो यहाँ पे यानी शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स. यहाँ पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है तो यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटीज़ है. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, यानी सेम टू सेम है. लर्न करने के लिए बहुत ही ईजी है कि भाई ये तीनों की तीनों यहाँ पे रिपीट है, बट सेकंड यहाँ पे एक ट्रेड पेएबल्स ऐड हो रहा है, बाकी सिंपल है. सो अब मीन्स ओरल हम कर सकते हैं यहाँ पे कि वन बाय वन तुम्हें करना है, कि मीन्स ऐसे ओरल तुम्हें लर्न करना है कि चलो सबसे पहले क्या है, तो सिंपली शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में, तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. सेकंड मीन्स क्या है, तो सेकंड हेडिंग हमारा जो सब हेड है मैन मीन्स देखने जाओ तो मैन हेडिंग हमारे लिए है नॉन करंट लायबिलिटीज़. नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. और करंट लायबिलिटीज़ है, करंट लायबिलिटीज़ में नॉन करंट
borrowings, or we can say the short term borrowings. जैसे यहाँ पे long term borrowings है, यहाँ पे short term borrowings. Then trade payables, then other short term liabilities and short term provisions, or a current liability, we can say is the current liability or a short term liability. तो ये हो गई हमारी liability side, इसे अच्छे से लर्न करना है. एंड नाउ असेट साइड. तो सेकंड मीन्स जो है हमारी वो है असेट साइड. तो असेट्स में मेन हेडिंग है हमारा नॉन करंट असेट्स. और नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल असेट्स, और सेकंड intangible assets. Then B, non-current investment, long-term loan and advances, and other non-current assets. Other non-current assets, यानी कि फिक्टिशियस एसेट जो हम नॉर्मली मीन्स लिख रहे थे, यहाँ पे भी इट इज़ नॉन एज अ अदर नॉन करंट असेट्स इज फिक्स असेट्स. तो पहले ये लर्न कर लो अच्छे से कि भाई असेट्स, तो असेट्स में मेन पॉइंट क्या है, नॉन करंट असेट्स. नॉन करंट असेट्स में मेनली 4 असेट्स है. तो फर्स्ट फिक्स असेट्स. फिक्स असेट्स में टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स. देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, and other non-current assets. And now second one is current assets. तो करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, ये 3 पॉइंट्स तो है बट और 3 पॉइंट्स ऐड होने वाले हैं यहाँ पे. करंट इन्वेस्टमेंट बी, सी, डी, ई एंड एफ. इन्वेंटरीज यानी कि स्टॉक से रिलेटेड जो भी है. इन्वेंटरीज लूज टूल्स कंसिडर कर लेते हैं. उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स है, देख goods in work in progress, raw material of stock, all are considered in a inventory. Then trade receivables, cash and cash equivalent, cash and cash equivalent, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. नेट शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, जहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है ऐसा यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस. एंड अदर नॉन करंट असेट्स है ऐसे अदर करंट असेट्स. तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस,
and other current assets, other करंट असेट्स। तो मेनली मीन्स हमने ये सब हेडिंग्स अभी तक ये फॉर्मेट किया है, और वी कैन से इट्स अ फॉर्मेट ऑफ हेडिंग्स। डिटेल मीन्स जो बैलेंस शीट है वो हमें डिस्कस करना है अच्छे से, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दिस बैलेंस शीट मीन्स द एडिंग और द सब एडिंग ऑफ द बैलेंस शीट, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस ऑल द एंट्रीज। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है, तो शेयर कैपिटल एंड इन शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल, issued capital, subscribed capital, called up capital, share calls in arrears or share forfeited. All things are included in a share capital. Reserve and surplus तो like general reserve है, investment fluctuation reserve है, all reserves are included in the reserve and surplus dividend equalization fund या reserve हो, तो all reserves are included in the shareholders fund, it means reserve and surplus. नेक्स्ट है वो है नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो इन नॉन करंट लायबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जैसे डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपोजिट्स है, ऑल आर कंसिडर्स इन ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, द लायबिलिटीज़ मोर देन 12 मंथ्स आर कंसिडर एज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। एंड द लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जैसे प्रोविडेंट फंड है इस कंसिडर इन अ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वो भी डिटेल्स है प्रोविजंस कौन से। तो ये मीन्स हमारे सब हेडिंग है, हेडिंग्स और सब हेड है लाइक के मीन्स यानी मेन हेड्स लायबिलिटी के 3 हेड्स आर कंसिडर एज मेन हेड्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी इट्स कॉल हेड ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के मेनली 2 हेड्स है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, एंड सेकंड वन इज असेट्स। नाउ मैन हेड ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के मैन हेडिंग कितने 3 है, 1 2 एंड 3 हेड्स है। फॉर एग्जांपल द शेयर होल्डर्स फंड दैट इज द मैन हेड ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी, सेकंड वन इज नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड थर्ड वन इज करंट लायबिलिटीज़। एंड इन असेट्स only the two main heads, one is a non current assets and second is current assets, and the subhead is here, the subhead is given 1 2 3 4 subsets are there, or here the 6 subsets. In liabilities also 2 subheads of shareholders, 3 subsets of non current liabilities, and the 4 subheads of current liabilities. तो दैट्स अ वेरी सिंपल, कितना टिपिकल है नहीं, लर्न करना है। लाइक असेट्स में हम जाएंगे कि भाई टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स कौन कौन सी है। तो वी नो वेरी वेल टेंजिबल असेट्स बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स और आर कंसिडर्स एज ए टेंजिबल असेट्स। और इनटेंजिबल असेट्स गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, software, franchises, all the assets, it means all these entries are the intangible assets. Now the non current investments, the investment or the amount invested more than 12 months, it is considered as a non current investments. Long term loan and advances, then amount given for more than 12 months, it is considered as a long term लोन एंड एडवांसेस। अदर नॉन करंट असेट्स तो हमने डिस्कस किया है कि जितनी फिक्टिशियस असेट्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो सकता है, डिबेंचर डिस्काउंट है, शेयर डिस्काउंट है, एस्टाब्लिश एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस है, ऑल आर कंसिडर्स और ऑल आर रिकॉर्डेड अंडर द हेड ऑफ अदर नॉन करंट असेट्स। एंड वी नो वेरी वेल करंट असेट्स, तो करंट इन्वेस्टमेंट द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द लेस देन 12 मंथ्स, 12 मंथ से कम टाइम के लिए तुमने यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, तो इट इज़ कंसिडर एज ए करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरीज भी डिस्कस्ड, जैसे स्टॉक से रिलेटेड जो भी है, चाहे वो रॉ मटेरियल का है या फिर स्टॉक द वर्क इन प्रोग्रेस में है या फिर फिनिश गुड्स है, ऑल आर कंसिडर्स इन ए इन्वेंटरीज। नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ट्रेड रिसीवेबल्स नॉर्मली बिजनेस के थ्रू जो रिसीवेबल्स हो रहे हैं यानी ट्रेडिंग से जो रिसीवेबल्स हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स।
और नॉर्मली इन ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स आर द ट्रेड रिसीवेबल्स, ये दोनों एंट्री जाएगी तुम्हारी ट्रेड रिसीवेबल्स में, क्योंकि ट्रेडिंग सी वजह से रिसीवेबल्स क्रिएट हो रहा है, वो है ओनली डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो जैसे कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, ड्राफ्ट है, ऑल आर कंसिडर एज ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नाउ शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, तो द अमाउंट गिवन लेस देन 12 मंथ, 12 मंथ से कम टाइम के लिए तुमने किसी को पैसे दिए तो इट इज़ कंसिडर एज ए शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। एंड अदर करंट असेट्स, तो रिमेनिंग मीन्स बाकी जो असेट्स है इज कंसिडर एज ए अदर करंट assets। And तो simply we'll discuss or write down or we'll again discuss in detail the balance sheet, but first of all you have to learn this balance sheet. It means the main heading and the subheading of the balance sheet, so you can find very easy in the detail when we will be discuss in details all the हेडिंग्स। जब भी हम ये सभी हेड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो तुम्हें फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये मीन्स जो फॉर्मेट है वो लर्न करना है, और जो नेक्स्ट यानी कि जो डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।